नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्रास फ्यूजन्स पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया लेसन। चलो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। इन लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग द केस ऑफ UNR Rao versus Indira Gandhi. And we have already discussed the facts of the case. We will rediscuss, there is no problem, but the important thing is the discussion regarding the interpretation of certain provisions. तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि What is the meaning of there shall be, और कॉन्स्टिट्यूशन के केस में आप लोग याद रखना, क्योंकि जब आप लोग बाकी लेजिस्लेशन पढ़ते हो एक्सेप्ट प्रोसीजरल लॉज, देन समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना, जैसे जैसे आप लोग आगे पढ़ोगे तो अभी तो आप सेकेंड ईयर में हो, समटाइम्स द सुप्रीम कोर्ट सेज दैट शैल मींस दैट इज स्टैट्यूटरी मैंडेट, और कई बार इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस दे आल्सो इंटरप्रेटेड लाइक दैट कि शैल मे बी कंसिडर्ड एज मे आल्सो. सो यू नीड नॉट टू गेट कंफ्यूज एज ऑफ नाउ why I am telling you this thing at this point of time, because remember in the constitution wherever the term shall has been mentioned, it can never be read as may, because remember the constitution is the suprema lex. So basically the courts, while interpreting the provision, they cannot impose their own understanding and their own idea specifically regarding the use of terms. ये मैंने तुम लोग को इसलिए भी बताया है बिकॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ वी हैव रेड आर्टिकल 52 which says that there shall be a president of India. Then we have read article 53 which says that the president shall be the head of the executive and all the decisions of the president shall be taken by him either directly or through the officers subordinate to him. फिर हम लोगों ने 74 डिस्कस किया बिकॉज 73 we have already discussed that the executive power of the union is coextensive with the law making power of parliament, and I explained you that why this term is mentioned there. They are saying that the executive power is coextensive to the law making power of parliament. Then article 74 they are using the term shall. Under article 52 they are using the term shall. And then we started discussing article 75, which is very very important for you to understand the nature of the Council of Ministers and basically to understand the philosophy and the manner in which basically this Council of Ministers is going to work. So as per my remembrance, इसको जरा आप लोग 75 खोल लेना. As per my remembrance, in last class we have discussed article 75 subclause 1 which says that the prime minister shall be appointed by the president and the other minister shall be appointed by the president on the advice of the prime minister. इसमें मैंने आपको बताया था कि जो 53 में कहा गया है ना, the president who shall be the head of the president is the head of the executive and he will exercise his power either directly. So this is the place 75 subclause 1 where he is going to exercise his powers directly, because this is something which is related with the appointment of the prime minister. But in my last class also I told you that it doesn't give unlimited discretion to the president of India, because there is a set convention, और set convention में मैंने आपको बताया था the leader of the largest political party who is in the position to form the government, that leader shall be appointed as the prime minister, and then on the advice of the prime minister the president other minister shall be appointed. That was 75 subclause 1. Now let's come to 75 1A. 75 1A को जब आप लोग पढ़ते हो तो एक समय आप लोगों ने तो नहीं खैर देखा होगा इतना, एक समय था जब लाइक व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी जी वाज द प्राइम मिनिस्टर, या उसके पहले जब से द एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट बिगिंस, फ्रॉम एवरी कोalition पार्टनर देयर विल बी 2 or 3 ministers. So what was the problem? The problem was sometimes 100, 115. This was the size of the Council of Ministers. So 100, 115 minister means this is something which is beyond control. So it is very difficult to manage such a huge Council of Ministers. So that's why through the 91st Amendment Act 2003, 75 1A and 1B was added. 1A and 1A और 1B क्यों एडेड किया गया था, इसमें एक चीज और समझ लेना आप. मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी was running 13 political parties alliance.
as a government, he was running the alliance of 13 political party and it was truly very, very difficult to manage this alliance. तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी कि 100 तक आपके मिनिस्टर्स की संख्या चली गई थी. So what he wanted to do, he wanted to make it correct for the future governments, and for this purpose, this 91st Amendment Act 2003 was passed. And what was the basic purpose of this Constitutional Amendment Act? जब आप 1A पढ़ते हो, then basically it is going to fix the maximum limit of the minister in a particular government. इससे ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस समय आप देखना मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो भी होते थे. मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो का मतलब है कोई काम नहीं है उनके पास, बट दे आर अवेलिंग ऑल द बेनिफिट्स, ऑल द पर्क्स, ऑल द फैसिलिटीज ऑफ अ मिनिस्टर. सो दैट वाज बेसिकली क्रिएटिंग अ लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी फॉर द गवर्नमेंट, एंड दैट्स व्हाई 75(1)(a) was added. What 1A says, the total number of ministers, remember, the total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the House of the People. यानी हाउस ऑफ द पीपुल की जितनी टोटल स्ट्रेंथ होगी उसके 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते. दिस इज द मैक्सिमम लिमिट. सो इन एनी केस, एज पर 75(1)(a), द मैक्सिमम लिमिट इज 15%. इट कैन बी लेस देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, बट इन or maximum up to 15%, not more than that. So that was 75(1)(a). Now what 75(1)(b) says, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लेना. A member of either house of parliament belonging to any political party who is disqualified for being a member on that house under paragraph 2 of the 10th schedule. Remember, paragraph 2 of 10th schedule is anti-defection law. So basically 10th schedule deals with anti-defection law, and para 2 of the 10th schedule, it is specifically dealing with defection. इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि डिफेक्शन क्या होता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने कर्नाटका के केस में देखा और कुछ पॉइंट्स में इस पे और डिस्कस करूंगी. पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं. अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड किया गया है, बिलोंग करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से. Either house of parliament means either he is from Lok Sabha or from the Rajya Sabha. Being a member of that house under paragraph 2 of the 10th schedule shall also be disqualified to be appointed as a minister. इसमें एक चीज आप याद रखना कि they are clearly mentioning that once a person has been disqualified on the basis of defection, then in that circumstances he cannot be appointed as minister also. Under clause 1, for the duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire, or where he contests any election to either house of parliament before the expiry of such period till the date on which he is declared elected, whichever is earlier. इसको जरा सिंपल सा समझने के लिए मैं आप लोग को एक चीज थोड़ी सी बताती हूँ, क्योंकि अभी आपने बहुत रिसेंटली कर्नाटका का एग्जाम्पल देखा है. कर्नाटका का अगर आप लोगों ने थोड़ा सा देखा होगा तो उसमें जब उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगा, देन बेसिकली द अफेक्टेड मेंबर्स मूव्ड टू सुप्रीम कोर्ट. वो क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आवर रेजिग्नेशन शुड बी एक्सेप्टेड. They resigned from Congress party. They are saying the speaker should accept our resignation instead of disqualifying us under anti-defection law. अब इसमें फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, इसको आप समझ लेना. इसमें बहुत मैं बेसिक आपको बता रही हूँ. Once a member has been disqualified under the anti-defection law, then remember in that circumstances he cannot contest for election for the remaining period of the legislative assembly. यानी जैसे मान लो कि 5 साल के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, ठीक है. जब वो डिस्क्वालीफाई हुआ तो 4 साल का टर्म जो है वो बचा हुआ है असेंबली को कंप्लीट होने में. इफ ही हैज बीन डिस्क्वालीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, रिमेंबर ही कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन फॉर द रेस्ट ऑफ द 4 years. मतलब उस विधानसभा के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता. बट रिमेंबर, इफ हिज रेजिग्नेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, देन ही इज एंटाइटल्ड फॉर री इलेक्शन.
तो इसीलिए तुम लोग ये देखना कि जब भी तुम इस एग्जाम्पल को देखोगे, जब भी डिस्क्वालिफिकेशन का कोई प्रोसीजर शुरू होता है, वो ये कहते हैं कि वी आर टेंडरिंग आवर रेजिग्नेशन, सो आवर रेजिग्नेशन शुड बी एक्सेप्टेड इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट अस अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ प्री कंडीशंस होती हैं जो आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये होती है कि व्हेन यू रीड द प्रोविजंस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ, so much of discretion is vested in the speaker of the house। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि speaker of the house belongs to the ruling party। So so many times the role of the speaker is also very disputed। That's why in most of such cases the affected members move to Supreme Court। तो एक चीज याद रखना, once a person has been disqualified under the anti-defection law, he cannot be appointed as a minister for rest of the time period। तो rest of the time period में क्या है, अगर मान लो रेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड में मैंने आपको बताया कि अगर उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता है और फिर से इलेक्शन लड़के आ जाता है, जैसे अभी रिसेंटली आप लोग देखना गुजरात में एक केस हुआ था, ही वाज द एमएलए फ्रॉम कांग्रेस पार्टी but he was a single person। He has put his resignation, his resignation was accepted by the speaker, he recontested election from BJP, he won the election and he was back to the house। तो ये री-इलेक्शन की बात है। लेकिन once a member has been disqualified under the anti-defection law, he is not allowed to contest election for rest of the time period of the assembly। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता है। दैट इज 75(1)(b। Now let's come to 75 subclause 2। What it says the minister shall hold office during the pleasure of the president। Remember this term pleasure of president is something which is a very vague term। pleasure of president का मतलब ये होता है कि today the president is saying no, now this government should resign, then whether the government should resign। because remember here in all these cases it is very much clear that prime minister is also the part of the council of minister। how prime minister is different from rest of the minister? The first thing is prime minister is appointed by the president while rest of the ministers are appointed by the president on the advice of the prime minister। पहला difference ये होता है। But once you read under Article 74, it is very much clear that prime minister is also the part of the council of minister। तो इसमें दो चीजें याद रखना, जब आप थर्ड शेड्यूल में इनकी ओथ को देखते हो, then there is no different pro forma prescribed for prime minister। every minister and the prime minister they are going to take same oath। एक ही प्रो फार्मा है। इसमें एक चीज और याद रखना, कई बार ये आता है कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, जैसे अटल जी के समय में लाल कृष्ण आडवाणी जो थे, ही वाज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट रिमेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम there is no office in the name of deputy prime minister। so deputy prime minister is not a constitutional position। deputy prime minister is very much like any other minister without having any kind of a special status। yes, deputy prime minister, it seems that he has a special status because of his name, but remember he can never exercise the power which is available to the prime minister of India। prime minister of India को एडिशनल कौन सी पावर्स है वो आपको मैं बताऊंगी, जिसमें एक पावर ये क्लियर है कि मंत्रिमंडल में कौन रहेगा। दैट इज द होल सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जिसको प्राइम मिनिस्टर चाहेगा वही कैबिनेट में रहेगा, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहेगा। यानी वो अपनी टीम खुद डिसाइड करेगा कि with whom he wants to work and to which person he wants to give what kind of ministry। so these are the basically descriptions of the prime minister of India। but otherwise prime minister is also the part of the council of minister। तो जब इन्होंने ये बोला the minister shall hold office during the pleasure of president, तो क्या इसका मतलब ये है कि आज प्रेसिडेंट को लग रहा कि नहीं हमें सरकार नहीं अच्छी लग रही है तो हम कहते हैं रेजिग्नेशन दे दो? नो, it's not like that। the pleasure of the president should also be exercised according to the provisions of the constitution। and what provision says? basically it says two things। the first thing is normal term of Lok Sabha is 5 years। तो प्लेजर का मतलब हुआ दिस प्लेजर कैन नॉट बी एक्सरसाइज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ लोकसभा, बट द प्री कंडीशन इज द गवर्नमेंट मस्ट हैव मेजॉरिटी। यानी एक बार जब इलेक्शन हुए, नई लोकसभा बन गई, नई सरकार आ गई, तो वो सरकार 5 साल चलेगी।
5 साल पूरा होने पे दो पॉसिबिलिटी होती है। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि इलेक्शन हो गया, नई सरकार बन गई और पुराना प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा? देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस द प्रेसिडेंट विल एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन एंड द whole cabinet can be removed or dismissed. Similarly, remember here the meaning of the pleasure of president is if the government has lost its majority. मेजोरिटी कैसे लॉस कर दिया? सपोज देयर इज, जैसे मैं हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि देयर इज अ कोalition गवर्नमेंट इन द सेंटर एंड सम allies have decided to withdraw the support. जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि शिरोमणि अकाली दल ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, लेकिन सरकार को, सेंटर गवर्नमेंट को कोई खतरा क्यों नहीं है? बिकॉज द सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इज इन द मेजोरिटी. बट सपोज any such condition arises, any such circumstances arises, जैसे अटल जी के टाइम पे हुआ था या कोalition गवर्नमेंट स्टेट्स में गिरी हैं, जिसमें allies ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया. जब समर्थन वापस ले लिया, now whether the government is in majority or in minority, it should be proved on the floor of the house. तो ऐसे circumstances में आप लोग कई बार क्या देखते हो कि the speaker is not intended to call the session of the house. क्योंकि जैसे अरुणाचल के केस में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि स्पीकर सेशन क्यों नहीं बुलाता, क्योंकि उसको मालूम है जैसे ही हम सेशन बुलाएंगे वैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, और नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा तो सरकार गिर जाएगी. लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि मान लीजिए स्पीकर आइडियली इफ सच सर्कमस्टेंसेस अराइजेस, इसीलिए अभी आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान में, उसके पहले कर्नाटका में जब ये सारी रस्साकशी शुरू हुई तो तुरंत डिमांड होती है कि स्पेशल सेशन शुड बी कॉल्ड. एंड व्हेन द स्पीकर इज नॉट कॉलिंग द स्पेशल सेशन, देन द कंसर्न मेंबर, द अफेक्टेड मेंबर्स और द अफेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी, दे विल अप्रोच टू द गवर्नर एंड दे विल रिक्वेस्ट हिम to instruct the speaker to call the session, or they will request governor to call the session कि आप सेशन बुलाइए. तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखना कि सपोज करिए कि because of the withdrawal of the support of any political ally, the government has lost the majority, but the prime minister and his cabinet is not ready to give his resignation, then in that circumstances the president will exercise his pleasure. तो ये मैंने प्लेजर एक्सरसाइज करके क्या करेगा? द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे जब आप 75 सब क्लॉज 2 पढ़ते हो तो ऐसा लगता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट की सुबह उठ के जागा और बोला कि नहीं रिजाइन करो तो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे. नहीं, ऐसा नहीं है. द 75 सब क्लॉज 2 शुड बी रेड in consonance with the other provisions of the constitution, which expressly says in the constitution that the term of the Lok Sabha is 5 years. So any elected government cannot be dismissed by the president if the government has majority. The president will exercise his pleasure only in that circumstances when the government has lost the majority. So I think 75 sub clause 2 is clear to all of you. The minister shall hold office during the pleasure of the president. Any question? Or I should move ahead? चलो आगे बढ़ते हैं. 75 sub clause 3. The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People. What is the meaning of collective responsibility? आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, तो आपने देखा होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब सरकार को दी गई तो हेडलाइन न्यूज की आती है, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. या कोई बिल जब हाउस में रखा जाना होता है उसके पहले उसका अप्रूवल कैबिनेट करता है. जैसे अभी एग्रीकल्चर को लेकर के 3 बिल आए हैं. द बिल्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रूवल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसमें 2-3 चीजें आप याद रखना. पहली चीज में आप ये याद रखना कि जैसे मान लो जब कैबिनेट में किसी चीज पे कोई डिस्कशन होता है, जैसे मान लो अभी एग्रीकल्चर जो बिल आए या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, तो इसमें कैबिनेट बैठ करके जब इसको डिस्कस करती है, देन द डिफरेंट मिनिस्टर मे हैव देयर डिफरेंट ओपिनियंस. Some are agree with the bill, some are disagree, some wants to give certain suggestions. Some suggestions are good, some suggestions are bad. But remember, once the cabinet has give its approval over a particular bill, now that is considered as the collective consent of the cabinet.
तो कलेक्टिव कंसेंट ऑफ द कैबिनेट का मतलब क्या होता है? सपोज करो मैं मिनिस्टर हूं, मैं एग्री नहीं हूं, मुझे लग रहा नहीं ये जो नया बिल आ रहा है ये गलत है, मैंने अपने विरोध को वहां पे दर्ज कराया और मैंने बोला कि नहीं इसके ये नुकसान हो सकते हैं. But what was my objection that was collectively rejected by the majority of the cabinet ministers. तो मेजोरिटी ने चूंकि obviously that is going to be approved, 100% prime minister is in agreement with that those clauses. I had some objections, I raised objection, but my objection was rejected by the cabinet. But once the cabinet has approved that bill, then in that circumstances I am not supposed to speak anything against the bill in the public. तो इसमें क्या होता है, मुझे मैं एग्री हूं, मैं एग्री नहीं हूं, वॉट एवर आई वॉन्ट टू से आई विल स्पीक ओनली इन द कैबिनेट मीटिंग. Once it has been approved by the cabinet, whether I am agree or I am disagree, openly, ethically, I am not supposed to speak against the government. कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब आप ज्यादा बोलते हैं, then in that circumstances, the prime minister can also ask you to put your resignation. तो उसको माना जाता है कि आपने अनुशासनहीनता या इनडिसिप्लिन किया है, और उस समय उस मिनिस्टर से ये भी कहा जा सकता है कि आप रेजिग्नेशन दे दीजिए. एंड सपोज इफ ही इज नॉट रेडी टू गिव हिज रेजिग्नेशन, देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट विल रिमूव हिम. प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है, क्योंकि 75 सब क्लॉज 1 कहता है कि प्रेसिडेंट ही पीएम के कहने पे अपॉइंट करेगा, और पीएम के कहने पर ही ऐसे मिनिस्टर्स को हटाया जा सकता है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सपोज एनी बिल हैज बीन कलेक्टिवली अप्रूव्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. वंस इट हैज बीन अप्रूव्ड, द कंसर्न मिनिस्टर विल पुट इट बिफोर द हाउस इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा. इसको रखा जाएगा और इस पर डिस्कशन होगा. सपोज करिए बिल लोकसभा में रखा गया और बिल पास नहीं हुआ, तो अगर बिल पास नहीं हुआ, देन दिस इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट मिनिस्टर दैट द बिल कुड नॉट बी पास, बट इट वुड बी द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एंड देन इट गिव्स एन इन्फ्रेंस दैट बिकॉज द गवर्नमेंट कुड नॉट पास अ बिल, इट मीन्स द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी इन द हाउस. इसीलिए आप देखोगे जब कोई इंपॉर्टेंट बिल आता है तो आप देखना पॉलिटिकल पार्टीज और अपोजिशन दोनों व्हिप जारी करते हैं. तो व्हिप जारी करने का मतलब क्या होता है कि जो भी है वो सदन में आएगा. आप स्ट्रेचर पे चढ़ करके आओ, आप व्हील चेयर पे चढ़ करके आओ, आप डिप लगा करके आओ, आप कैसे भी आओ, unless and until you have been exempted, you will have to ensure your presence inside the house. आप अपनी presence को ensure करोगे, because sometimes such bills, इसको क्यों किया जाता है? Because if the government is not able to pass a bill, then it gives very strong indication that the government has lost the majority, and the possibility enhances that the opposition will demand for the resignation by the government. एक तो ये होता है कि अपोजिशन कहेगा कि आप माइनॉरिटी में आ गए हो तो आप रेजिग्नेशन दो. तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हुआ है कि जिस मिनिस्ट्री का या जिस मिनिस्टर का बिल गिरा, वो मिनिस्टर रिजाइन नहीं करता, पूरी की पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना चाहिए वंस इट इज क्लियर दैट गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी. लेकिन एक चीज इसमें याद रखना आप कि if the government is not able to pass a bill, then automatically the government is not going to put his resignation on this basis that they have lost majority. If the opposition is confident that the government has lost the majority क्योंकि बिल नहीं पास करा पाए हैं, then the opposition should move no confidence motion. ठीक है ना? तो अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ सकता है, और जब अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आएगा, then the government will have to prove its majority on the floor of the house. समझ में आया ना? तो मेनली ये लोकसभा में होता है, राज्यसभा में इतनी वैल्यू इसलिए नहीं होती बिकॉज दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, एंड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस द जॉइंट सेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड. तो मेनली आप याद रखना कि दीज थिंग्स हैपन, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिकली वंस इन द लोकसभा the council of minister, the cabinet is not able to pass its bill, then not only the concerned minister but the entire ministry will be responsible, और इसका entire cabinet will be responsible. और इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो कैबिनेट का डिसीजन होता है, वो मिनिस्ट्री का डिसीजन नहीं होता. That's why they are saying that the council of ministers shall be collectively responsible to the house of the people. लोकसभा के लिए collectively responsible होगी,
और ये मैंने आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बता दिया कि एक मिनिस्टर का अगर बिल गिरता है तो पूरी सरकार के ऊपर उंगली उठती है, क्योंकि ये उनकी, इसीलिए अगर आप लोग को याद हो तो ये जो आपका कोलगेट स्कैम हुआ था उसमें एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही वाज द कोल मिनिस्टर। तो जब पारिक साहब को सीबीआई ले जाने लगी, ही वाज द कोल सेक्रेटरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो पारिक साहब ने बोला कि इट वाज नॉट माय डिसीजन, इट वाज द डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ कोल मिनिस्ट्री ऑल्सो। तो उनका ये कहना था कि मैं जिम्मेदार कैसे हूं, आई एम ओनली आईएएस ऑफिसर, आई एम ओनली अ ब्यूरोक्रेट, दिस इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एंड इफ आई एम रिस्पॉन्सिबल देन प्राइम मिनिस्टर शुड बी इक्वली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। लेकिन यहाँ पे एक सचिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, विच वी विल रीड अगेन इन द केस ऑफ आर्टिकल 77, बट रिमेंबर अंडर आर्टिकल 75 सब क्लॉज C, once we are talking about the collective responsibility, we are talking about the collective responsibility of the cabinet towards the Lok Sabha or the council of ministers towards the Lok Sabha। तो आप लोग को collective responsibility समझ में आ गई? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिर्फ वो मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेगा जिसका बिल गिरेगा, पूरी की पूरी कैबिनेट रिजाइन करेगी, पूरी की पूरी कैबिनेट आंसरेबल होगी। और रिजाइन तब करेगी जब या तो अपोजिशन बिल ला करके प्रूव कर दे कि हमारी सरकार, ये सरकार मेजोरिटी खो चुकी है, या फिर कई बार क्या होता है कि इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है कि सरकार को ही पता चल जाता है कि हमारी सरकार जा रही है। हालांकि ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है, लेकिन दिस इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, अगर आपको आज का लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड नए नए अपडेट्स मिलते रहें। और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।